Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, we start our class. Boys, you all know I have given you the page number. कुछ पूछूं? You can, yes. Question 8. सर ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया था और क्या कहते हैं 159 पेज नंबर एक्टिविटी बुक का मुझे ए पार्ट से समझ में आ गया था कि पूरा वन पार्ट जब बनता है जब 10 पूरे मिलकर आते हैं। लेकिन सर मुझे बी वाला नहीं समझ में आया था। मैं आपको शो करता हूँ, आप मैच कर लें आंसर। सर ये जी चेक कर लें आंसर। ये जो आपने पेज नंबर दिया था ना, ये वाला आंसर चेक जी कर जी लें। हाँ ठीक है 57. ओके Last question is correct. Question 8. I have given you question number 8 yesterday for homework. All of you have completed it. अरे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी बेटा सर कौन सा कॉन्सेप्ट? ये वाला जो दिया था मैंने क्वेश्चन पेज दाऊद हाँ सर ये मैंने कर लिया। आसान है। आसान है हो गई। चलो Okay, just I'm asking the question. Umar, your mic is producing noise. Daud is showing. जी सर अच्छा Yes, Daud answered the question 8A. Hurry up, Daud. सर 0.3 बुक लेने गया था। Okay, Umar. 0 point. 3 No. Look here, 0. Between 0 and 0.1, there are 10 सर small मैं बताऊं? divisions. Umar, can you tell the answer, Umar? यस सर। Okay. Tell. 0.03 0.03 will be the correct answer here. If there would be 0 and 1, so its answer would be 0.3. Now it's 0.1, so its answer will be 0.03. Okay, now second is yes, Daud again, try again. Second blank 0 point. Yes. सात का शिफ्ट सर 0.4 Okay, Saad Kashif, tell the answer, correct 0 answer. Daud is telling wrong answer. जी सर। सर व्हाट इज द होमवर्क? It was the homework which we are discussing. Saad,
जी सर। बताएं इसका जवाब, बताएं ये सेकंड ब्लैंक जी सर। और क्वेश्चन 8, सेकंड ब्लैंक क्वेश्चन 8 7। सर 0.4। 0.4 Sir, is I wrong. will. Okay. Sir, I will tell the answer. Okay. Tabarak will tell Umar. Wait for Tabarak. जी सर 0.14। 0.14. 0.14 is the correct answer. Now Umar Mustafa will tell the third one. Sir 0.22। 2 यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ ख़ास तौर पे दाऊद और साद काशिफ को कि यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है ये 100 की नंबर लाइन है, 100 की, ठीक है। और इसमें क्या पहचान है इसकी, 0 से लेकर 0.1 तक 10 स्मॉल डिविजन्स हैं। मीन्स 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 सर मेरी आवाज आ like रही है? this. Yes, I can listen you. Okay, so the numbers will go on like this in 2 digits after the decimal. Okay, now try Daud the first question here. I tell you this is 2.51. Yes, Daud, hurry up. What will be the answer of this question B part B, first blank? 2 sir 2.25। 2.9. सर मैं बताऊं? 7 बताएं, 7 काशिफ। उमर नहीं, 7 जी सर। काशिफ। आपकी समझ आ गया ये? दिस वन इज़ 2.52, 2.53, 2.54। बताइए क्या होगा? सर 2.57। वेरी गुड। ओके, नाउ उमर बताएं इसका। सर उमर 2.66। 6। 2.66। ओके, दाऊद बताएं, अगर आपके समझ आ गया होगा तो आप बता देंगे इसका सही। दाऊद। सर 2. 2. This is 2.71. 79. 79. Right. Okay, today's class we are starting today's lecture 28/1. Write the date at the top of the page. This is page number 162. सर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जी, this is page 160. Use each number card once and a decimal point to form 3 decimals not more than 60. Use each number card once. Once means only one in each number, and a decimal point like this to form 3 decimals. 3 decimals means 3 decimal numbers. Not more than 60 means 60 से ज़्यादा नहीं होंगे वो. So मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद आप बनाइएगा. सो वी हैव दीज नंबर कार्ड्स. मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि नज़र आ जाए. 95.02. यहाँ पर
मैं दोबारा बता दूँ, दिस इज़ कॉल्ड द होल पार्ट and this is the decimal part. In a decimal number there are two parts. One is whole part, that is before the decimal, like ones, tens, we write the values like this, and the other on the right side is decimal part, so its values are tenths, hundreds. Okay. So this 95.02 is not less than 60, so this number cannot be listed in the given question. So because we have to write a ये number जो that is not more than 60. सर मैं बता Did anybody inform other students to join the class? किसी ने दूसरे बच्चों को बोला था कि वो ज्वाइन करें क्लास? सिर्फ 4 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। कल शायद आदिल भी आया था, सर आज मैंने नहीं आया। आरिफ को कहा था आरिफ को कहा था आरिफ को कहा था, और सर मैं आपकी एक बार मेरे पास सर मेरे पास तो आरिफ और तबारक का ही नंबर है। ओके जी, आप कोई बताएगा, कोई नंबर बताएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैं क्वेश्चन? आपसे एक बात पूछ रहा हूँ जी बोले। सर 5 9 ओके, वेट फॉर तबारक। तबारक इज आस्किंग समथिंग। बोले सर तबारक। ये 10 हैं और 10 हैं, ये मोर देन 60 से ऊपर हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता ना, ये मोर देन 60 से ऊपर नहीं हो सकता। यही तो मेन है कि 60 से ज़्यादा, यानी 60.00 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये मैंने अभी तो बोला, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। चलें, आप सही बताएंगे कौन? तबारक बताएंगे पहला नंबर। 5920 उमर ने बता दिया 59.20। गुड, दिस इज़ करेक्ट। तबारक बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। यस तबारक। देन दाऊद। एवरीबडी टेल वन ऑफ द नंबर्स using these digits 0 2 5 9, but that number not be more than 60. 25.02 25.002. We cannot repeat a number, we can write 9 here. Yes, okay Daud. सर सर Yes, हमने ना एलसीएम भी स्टार्ट कर दिया करना, हमने डिवीजन भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी, प्लस माइनस सब। बहुत अच्छी अब बात है बेटा, LCM माशाल्लाह। आप मुझे ये बता दो, आप इस सवाल के जवाब में आप कौन सा नंबर लिख सकते हैं? कम ऑन। नहीं आ रहा आपको दाऊद? जी चले 7 बताएं। उमर ने बता दिया, तबारक ने बता दिया, अब 7 जी रह गए और सर। दाऊद रह गए। जी सर, कौन सा वाला? देखो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा यहाँ से। 7, हम कौन सा पेज पढ़ रहे हैं अभी? कौन सी बुक का पेज खोला हुआ है तुमने? ये सर क्या मैं पूछ रहे हो अपना आप, कौन बना रहा सा? हूँ अलग से। तबारक अब आप नहीं बताएंगे, अब सिर्फ 7 और दाऊद बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। सर मैं अपनी बुक में अपना काम कर रहा हूँ। सर मैं दाऊद बताऊँ? बताएं। 5 5 2 2 पॉइंट पॉइंट 90। 90। वेरी गुड। चले 7, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम सर से पूछ लेता हूँ मैं। सर 9 9 5 5 2.20। 2.20। जी जी, कोई इसको कंफर्म करेगा क्या इन्होंने सही बताया है? यस। नो सर, उमर इज सेइंग गलत नो, बताया। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज दिस इज क्योंकि ये 60 से ज़्यादा है, करीब बिकॉज है। दिस इज़ ग्रेटर देन 60। यस 7। क्या आप मुझे सही आंसर बताएंगे?
करेक्ट आंसर फॉर सर मैं सात। बताऊं? सात अच्छा, बताएंगे, सात टू बताएंगे। टू, 5 टू, 5, पॉइंट पॉइंट 9। 90। नाउ दिस इज करेक्ट जी। सर मैं फुर्सी अपना का। शेयर करूंगा आपको। अच्छा जी, और कोई बताएगा? सर मैं 4 का बताऊं? एक और बता दें चले। मैं बताता हूँ 05। जी, 29.05। 29.05, वेरी गुड। उमर आप बताएं एक और। 05। 05, 50 कर लो, ज़ीरो से 50 स्टार्ट नहीं करता। पॉइंट पॉइंट 92। Okay, this is also right. We are moving this book. This page is completed. Now I'm explaining something on whiteboard. Then we will come on this page. Our topic is relating. Our topic is relating money to decimals. Relating money to decimals. Money notation to decimals. Relating money notation to decimals. Okay. Notation. चैप्टर Notation. खत्म इसके बाद? Yes, this chapter is almost completed, finished. So this is the last topic of this chapter, relating money to decimals. You have seen this is written like rupees 45.50, or you have seen the price 207.99 like this. So what is the meaning of this decimal here in सर the मैं case बताऊं? of rupees? Let me explain Daud. And मिलियंस। you have seen dollar 67.8 मिलियंस। नमन। सर दाऊद, मिलियंस या डॉलर्स? दाऊद आप खामोश हो जाएं, पहले मुझे बोलने दें। अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप आ जाएं पढ़ाने। सुन ले पहले, आप गलत बोल रहे हैं आप बिल्कुल। सुनने का सलीका और सुनने का आदाब सीखें आप, ठीक है? Look here now. Here also, what does the meaning of 0.87? Okay, we know that there are uh, two parts in decimal here. 45.50. 45 is rupees and 50 is paisa. Okay, you know that there are 100 paisas in 1 rupee. There are 100 paisas in 1 rupee. 100 paisas. Just like this in dollars. In dollars, this is, there are two parts in decimal. Number 67 are dollars and 87 will be cents. सर पाकिस्तान में पैसे हम का लोग इसको मतलब सेंट्स। क्या है? तमारा गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। पाकिस्तानी करेंसी में हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को पैसा कहते हैं, पैसास, ठीक है? जैसे आप कहते हैं 50 पैसा, अभी आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा शायद। 50 पैसा का पहले कॉइन आता था, 25 पैसा का कॉइन आता था। तो अब जो है वो 1 रुपये का कॉइन आता है। लेकिन ये पॉइंट में वैल्यू आती है जब पेट्रोल की या सीएनजी या और किसी चीज़ की कीमत लिखी होती है, या सेल्स टैक्स कहीं पर लिखा होता है,
जनरल सेल्स टैक्स, तो उसमें आपको पॉइंट में वैल्यू नज़र आती है, ₹2.38 लाइक दिस। तो ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ये पैसा कहलाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पैसा। अब जो है डॉलर में यही चीज़ सेंट्स बन जाती है, ठीक है। और 1 सेंट जो होता है, 1 सेंट, वो 1/100 ऑफ ए डॉलर होती है, $1। यानी $1 के अगर हम 100 पार्ट्स करें तो उसमें से जो एक पार्ट होगा वो 1 सेंट बनेगा। और 100 सेंट्स कितने बन जाएंगे, 100 सेंट्स $1 बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 100 पैसा जो है वो क्या बन जाएगा, 1 रुपी, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि पता चल जाएगा कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बोलूँ कि जो 3 पैसा है, ठीक है, 3 पैसा है, इसको मैं रुपीज़ में किस तरह लिख सकता हूँ, रुपीज़ में तो उसको मैं किस तरह लिखूँगा, 0.03 रुपीज़ हो जाएंगे ये, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि 3 सेंट्स हैं तो ये डॉलर में कितने हो जाएंगे, $0.03 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इस तरह लिखूँ कि 3 सेंट्स इज़ 3/100 ऑफ ए ऑफ ऑफ $1 ऑफ $1, तो ये बात सही होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है ये यहाँ तक। अगर मैं कहूँ 95 सेंट्स, तो दिस इज़ इक्वल टू 95/100 ऑफ $1, ठीक है। और अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूँ तो ये हो जाएगा डॉलर्स ज़ीरो पॉइंट नाइन सर मुझे नहीं आ रहा फाइव समझ में। अच्छा, माशाल्लाह। चले अब तबारक बताएंगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, लो मैं आप तो कह रहे थे समझ आ गया आपको। ओके, नहीं सर मैंने नहीं बोला। दाऊद आपकी समझ आ गया, सात काशिफ। ओके, नो दाऊद बताएंगे, सर। अब दाऊद ये बताएंगे। सर जी, हमारा पैसा होता है उनका डॉलर होता है। नहीं, हमारा जो पैसा होता है वो सेंट्स के बराबर होता है, उनके सेंट्स के बराबर होता है। जैसे कि $35.05 लिखा है और रुपीज़ 35.05 लिखा है, तो यहाँ पर हेयर 35 रुपीज़, 35 जो है वो डॉलर्स होंगे और एंड 5 सेंट्स होंगे, ठीक है, इक्वल टू। और रुपीज़ के केस में सेम थिंग होगी बिल्कुल, इक्वल टू 35 रुपीज़ होंगे एंड 5 पैसास होंगे। ये आई थिंक टाइम इज़ ओवर। ओह, वी हैव 6 मिनट्स, 4 मिनट्स। तो यहाँ तक ये समझ आ गया, ताऊ तबारक, साद, वेर इज उमर जी, सर आ गया। ये समझ आ गया ना। चले अब बताएं, जी अब कोई भी बच्चा मुझे क्वेश्चन बताए कि मैं अगर ये लिखूं ये 51 सेंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कितने डॉलर्स के बराबर होगा जी। या मैं लिखूँ 51 पैसास, तो ये कितने रुपीज़ के बराबर होगा। गलत बताएं या सही बताएं, जिसको भी आता है वो बोला है। यस, सर 100
पैसा जो होता है वो 1 रुपीज के बराबर होता है। जी। और 51 पैसा कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 से कम हो जाएगा, तो कितना होगा? यहाँ पर देखें, ये 0.5 सेंट्स थे, ये 5 सेंट्स के बराबर आ गया। यहाँ 0.5 पैसा था, ये किसके बराबर है? 5 पैसा के बराबर आ गया। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 5 पैसा इसके बराबर है और 5 सेंट 0.5 के बराबर है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर 51 सेंट्स इन डॉलर्स? सो इट विल बी 0.51। और पैसाज में भी क्या हो जाएगी ये वैल्यू? जीरो 0.51 पॉइंट 51। हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर सर 0.51। अगर मैं यहाँ पर सिंपल 5 सेंट्स बना लगा दूँ, तो फिर यहाँ पे क्या चेंज आएगा? जी, अब आदिल आए ना, तंग करना शुरू कर देंगे ये। जी, क्या चेंज आएगा यहाँ पे? अब तो सामने लिखा हुआ आपके आंसर, अब तो बता देना चाहिए आपको। आदिल खामोशी से बैठे रहो, आप 3 मिनट पहले हो, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जी, कोई नहीं बता सकता? यस। इसका मतलब आपकी समझ नहीं आया ये। ना दाऊद की समझ आया, ना साद की समझ आया, ना तबारक की समझ आया। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 पैसाज इक्वल टू 0.05 सेंट्स, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0.05 रुपीज़ और डॉलर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ नहीं आया है। सर नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, चले। सर ये एक्टिविटी बुक का कौन सा पेज है? बेटा ये वाइट बोर्ड है। 100 सेंट्स कितने नहीं डॉलर्स सर, के ये जो बराबर? भैया पीछे करवा रहे थे। जी, 100 सेंट्स कितने डॉलर्स के बराबर होता है? सर इतने देर से कनेक्ट ही नहीं हो रही, लिंक ही नहीं आ रहा था हमारे में। सर 0.51 के बराबर। जी, 100 सेंट्स कितने सर डॉलर्स के बराबर है? जी, सर 100 पैसा तो 1 रुपी के बराबर होता है ना। 1 रुपी के बराबर, और 100 सेंट्स डॉलर के बराबर। $1, ठीक है ना। इसी तरह से 15 सेंट्स विल बी इक्वल टू 15/100 डॉलर्स, और वी कैन राइट आपका इट इन जो डेसिमल्स बात रन है ना वो। 0.15. Is it clear? यस सर। Okay, now you have clear to try. So try to do the page I'm giving to you. Time is over now. This is your homework. Page number question number 1, 2. Only 2 question you will do. 1, 2. Try to do it. सर पेज नंबर 28 1 2021. सर Last क्वेश्चन page. एक पेज नंबर होमवर्क का। Page 161. सर पेज नंबर Page सर 161 activity. जी, एक आंसर करवा दे, एक क्वेश्चन नंबर होमवर्क का। नहीं, ये आप खुद ही करें, फिर कल डिस्कस करेंगे इसको। नहीं आ रहा तो छोड़ देना, ठीक है। जितना आ रहा है उतना कर लेना, ओके सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।